गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सब ठीक चल रहा ना बच्चा। तो बेटा आज का जो टॉपिक है, द टॉपिक विल बी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। What qualitative characteristics of accounting information? The accounting information which are presented by the businessman, by the company, by the owner, by the businessman। जो businessman वो accounting information present करने जा रहा है उसकी कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन सी qualitative characteristics उसके होने चाहिए। Means if accounting information that may be in form of cash flow, that may be in form of profit and loss account, that may be in form of balance sheet, the accounting information which are shown by in front of other, which are shown by in front of other, या जो भी आप दूसरों के सामने शो करने जा रहे हो, what qualitative characteristics should have of the accounting information, कौन कौन सी उसकी जो है qualitative characteristics होनी चाहिए। If I'm talking about the last topic, your last topic was advantages and limitations of accounting. There were, you know very well what advantages and what limitations are accounting information. Today I am going to discuss about the qualitative characteristics of accounting information. Accounting information which are prepared by the businessman, that may be in form of trading account, you know, I already told you, that may be in form of trading account, that may be in form of profit and loss account, that may be in form of balance sheet। तो वो जिस भी फॉर्म में हो सकती है। आप आगे जाएंगे 12th में तो दैट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वर्ड से जो आप पढ़ रहे हैं इससे जो है ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि सर ने क्या लिख दिया। सो डोंट वरी, दीज आर द स्टेटमेंट, दिस इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच आर प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेसमैन। तो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग आपने की है, जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग की है, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जब आपने बनाया उसको, वो किस फॉर्म में हो सकती है, ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्म में हो सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में फॉर्म में हो सकती है, बैलेंस शीट के फॉर्म में हो सकती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्म में हो सकती है। तो इस फॉर्म में हो सकती है। तो प्रॉब्लम यह है कि जब आप इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट बनाते हैं, कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसी दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो दैट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन व्हाट characteristics, what qualitative characteristics should have for the accounting information, कौन कौन सी accounting information की कौन कौन सी qualitative characteristics होनी चाहिए। So today we are going to discuss for that कि what qualitative characteristics of accounting information। First is reliability। You know student, reliability का मतलब होता है trust, नहीं कि आप जो विश्वास है कि नहीं। तो according to the reliability characteristics of accounting information should have a reliability characteristics। If I'm talking about the reliability characteristics, तो reliability characteristics means each and every transaction have verifiable to the source of document। मैंने तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया है कि कैन बी वेरीफाइड बाय द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, यू नो स्टूडेंट्स, कि व्हेन यू आर गोइंग टू रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने जाते हैं, तो दैट ट्रांजेक्शन मे बी इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री एंड मे बी इन फॉर्म ऑफ परचेज बुक और सेल बुक, यू नो। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने जो है अकाउंटिंग साइकिल में बगल लिखा था कि व्हेन वी आर गोइंग टू रिकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू डू। फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या करते हो? First of all, you have to identify the transaction, and after identify the transaction, you are going to record the transaction, and that transaction are recording in form of journal entry, and that journal entry, that recording are verified by the source of document। You know students कि जब आप जो है रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन की, तो उसके पहले वो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। अब क्या होता है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट? मैं आपको जनरल वे में बता दूं कि अगर आपने कोई सामान बेचा तो तुरंत ये नहीं लिखेंगे कि सामान मोहन को बेचा तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल कर दिया। तो ऐसा जर्नल एंट्री फॉर्म में आप तुरंत नहीं सेट कर पाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। एक कॉपी, एक रफ जैसी कॉपी या सेल बुक हो सकता है, कैश इनवॉइस हो सकता है, जो बिलिंग आप फाड़ के नहीं देते हो। आपने कभी कोई सामान परचेज किया तो आपको बिल मिलता है, ठीक है। आपने जहां पे सामान परचेज किया वहां से आपको बिल मिलता है, तो आपके लिए वो परचेज इनवॉइस हो गई। वही जो सामान बेच रहा है उसके लिए सेल इनवॉइस हो गई। तो सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, तो पहले उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। जब रिकॉर्डिंग हो जाती है तब उसको हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री के फॉर्म में सेट करते हैं। तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विच आर रिकॉर्डेड इनसाइड द अकाउंटिंग, each and every transaction which are recorded inside the accounting, that should be verified। What verified by the source of document। Suppose that कि if you are sell the goods to the मोहन 20,000, अगर आपने मोहन को 20,000 का सामान बेचा है तो वो 20,000 की स्लिप सेल इनवाइस में होनी चाहिए। अगर आपने 2 लाख रुपए का सामान या 2 करोड़ रुपए का सामान परचेज किया है, दैट आल्सो बी शोन इनसाइड द परचेज इनवाइस, ठीक है।
तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विच आर रिकॉर्डेड इनसाइड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इनसाइड द अकाउंटिंग दैट शुड बी वेरीफाइड टू द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो मेरी बात समझ में आ गई कि हवा में उड़ता ट्रांजेक्शन या किसी के कह देने मात्र से आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। व्हेन यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन शुड बी वेरीफाइड बाय द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। आप बुक में से देख करके, कॉपी में से देख करके रिकॉर्ड करेंगे, ये नहीं कोई चलता आदमी आपसे बोला मेरा 20,000 का सेल रिकॉर्ड कर देना, मैंने 25,000 का परचेज किया था वो रिकॉर्ड कर देना, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इट मींस यू कैन से कि सर ओरल एग्रीमेंट या ओरल जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। ऑल द ट्रांजेक्शन शुड बी इन रिटन फॉर्म एंड शुड बी इन रिटन फॉर्म मींस ऑल द ट्रांजेक्शन शुड बी रिटन इन द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, इन द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ओनली। जहां पे आप सामान को बेचते हैं उसमें वो लिखा होना चाहिए, तभी वो सेल्स बुक में जाएगा, अदरवाइज द ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये देखो दोनों एक दूसरे से मिले हुए। एक रिलायबिलिटी, व्हाट रिलायबिलिटी टोल्ड? Reliability told to you that all the transaction which you are going to record in the books of account that should be verifiable, that should be verified by the source of document. If I'm talking about the source of document, you can say cash memo. जब आप किसी को पेमेंट करते हैं, आपने देखा होगा कि आप कहीं पे जाते हो सामान लेने के लिए, तो कैश मेमो मतलब आपने देखा बिल देते हैं आपको कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब अगर आपने सामान परचेज करके नगद में पैसा दे दिया, कैश पेमेंट कर दिया, तो आपको मिलता है कैश मेमो। तो अगर कैश मेमो में साइन किया है, कैश मेमो में जो है बिल दी गई है, तो इसका मतलब कैश मेमो की कार्बन कॉपी पे वो होगा। अब कैश मेमो से ही आपको जो है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, किसी के कहने से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है। आप जब रिकॉर्ड कर देंगे तो रिकॉर्ड करना वहां से टिक लगे, ऐसे टिक कर दीजिए कि मतलब हो गया। ऐसे परचेज वाले में इस पर टिक कर दीजिए, या कोई भी ये 2 क्रॉस बना दीजिए, सिंगल क्रॉस बना दीजिए, मतलब ऐसे जो है आप आइडेंटिफाई करने के लिए तो दैट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। तो क्या हुआ ये कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम बना रहे हैं उसमें जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं दैट शुड बी वेरिफिकेबल, दैट शुड बी रिलायबल, दैट शुड बी ट्रू। वो चीजें जो है सही सत्य होनी चाहिए। और सत्य की पहचान आप कैसे करोगे कि ऑल द ट्रांजेक्शन विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट शुड बी वेरिफिकेबल बाय द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। Suppose that when you have any problem, when you have any difficulties to find the transaction are correct or non-correct means right है wrong है, then that transaction should be verified by the source of document. Suppose that कि आपने मोहन का पेमेंट कर दिया है लेकिन आपने 20,000 या 30,000 लिख दिया। मोहन कहा नहीं मैंने तो 20,000 लिया था, आपने लिखा 30,000, तो आप तुरंत क्या निकालेंगे? कैश मेमो निकालेंगे। और कैश मेमो अगर आपके पास है तो यू कैन वेरीफाई द ट्रांजेक्शन कि दैट अमाउंट आर 20,000 और 30,000। तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होना चाहिए उसका जो सबसे पहला इंफॉर्मेशन, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, सबसे पहला उसका गुण है, उसकी क्वालिटी है, वो ये कि इनसाइड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इनसाइड द पीएल एंड बैलेंस शीट ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बट द ट्रांजेक्शन should be verifiable by the source of document. Source of document, for example, cash memo, purchase invoice, sale invoice and other agreement you can say, property deed जो भी हो, ठीक है। आपकी बैलेंस शीट में लैंड की कीमत 10 लाख है, वो लैंड के बराबर का पेपर, एक रिटन एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए कि वो लैंड आप ही का है, ठीक है। तो रिटन फॉर्म में कुछ ना कुछ एविडेंस जैसा कुछ ना कुछ होना चाहिए। देन द ट्रांजेक्शन, देन द अमाउंट, देन द आइटम्स विल बी रिकॉर्ड इनसाइड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इनसाइड द अकाउंटिंग, इनसाइड द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो तभी वो रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो सर रिकॉर्ड तो कर लिया। अब रिलायबिलिटी के बाद जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपका, रिलायबिलिटी तो हो गई, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपका रिलीवेंस। देखो रिलीवेंस मैंने क्या लिखा है, रिलीवेंस का मतलब है कि अभी पहले क्या बोला, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्ड इनसाइड द बुक्स ऑफ अकाउंट, but the transaction should be related to the source of document. Here what I am going to tell you, relevance का मतलब you have to record only those transactions which are directly related to the financial institution, to the business only. Unnecessary and irrelevant transaction need not to record in the books of account. आई मेरी बात समझ में? You have to identify कि what items are necessary for the business and what are not. How it will be so in front of various parties. Creditor, who is creditor? Creditor means the person
फ्रॉम वी आर टेकन लोन, फ्रॉम वी आर टेकन गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर हमने किसी पार्टी से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, किसी भी जो है संस्था से हमने उधार में सामान लिया है, तो वो चाहे सामान लिया उधार में, चाहे पैसा लिया, वो हमारा क्या होगा, क्रेडिटर होगा। एंड क्रेडिटर हैव अ नीड सम चार्जेस, सम इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम अपने बैलेंस शीट को उसके सामने दूसरे तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। रिलीवेंस उसके सामने दूसरे तरीके से दिखाएंगे। वहीं पे अगर कोई इन्वेस्टर जो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हो, देखो सारे आइटम्स की जरूरत सभी को नहीं है। किस पर्टिकुलर आइटम की जरूरत किसको है? किसको प्रॉफिट एंड लॉस की ही जरूरत है, किसको बैलेंस शीट की जरूरत है। सपोज दैट कि एनी इन्वेस्टर वांट इन्वेस्ट मनी इन योर बिजनेस। कोई इन्वेस्टर है जो अपने पैसा बचा करके रखा था, उसको पैसे का कोई काम नहीं, तो वो आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है। तो इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट मनी इन योर बिजनेस ओनली व्हेन यू हैव शो इन फ्रंट ऑफ देम कि दैट यू आर ए गुड फाइनेंशियल पोजीशन, यू हैव अ गुड प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी, देन ही विल इन्वेस्ट मनी इन योर बिजनेस। बट इन फ्रंट ऑफ क्रेडिटर, जिसको ब्याज चाहिए, जिसको लोन चाहिए, जिसको इंटरेस्ट चाहिए आपसे, एम्प्लॉय जिसको सैलरी बढ़वानी है, इफ यू आर शोन द फेयर वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी एंड फेवरेबल बैलेंस शीट अगर उसके सामने आपको शो कर देंगे, तो आपको उससे ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम बना रहे हैं, जो बैलेंस शीट का खाका हमने तैयार किया है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट हमने तैयार किया है, वो स्टेटमेंट वेरियस पार्टीज के सामने वेरियस वे में होना चाहिए, ठीक है। रिलेवेंस का मतलब है कि वी नो दैट कि अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट आइटम्स, unnecessary and irrelevant item, unnecessary and irrelevant information need not to be recorded in the books of account, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि आप पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल ट्रांजेक्शन को भी इसमें रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट इन फाइनेंशियल कैरेक्टर, द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस। आपकी भाई की शादी में आपने 20,000 2 लाख रुपए ऐसे ही पे कर दिया, तो उसका बिजनेस से कोई मतलब थोड़ी है। आई मेरी बात समझे? सो व्हाट ट्रांजेक्शन आर नेसेसरी एंड व्हाट ट्रांजेक्शन आर रिलीवेंट, दैट शुड बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। द ट्रांजेक्शन विच आर अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट नेचर, दैट नीड नॉट टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। रिलेवेंट का मतलब एक चीज और समझेंगे आप कि when we are going to show our accounting information in the various parties, we have to know that, we have to feel that कि what necessary item are uses by that party, what necessary item will be uses by that party। उसको किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है और किस फेवर में जरूरत है, हम उसी फेवर में उसको तैयार करके, आपको मैंने बताया था लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? टू मैनिपुलेट द फाइनेंशियल, to manipulate the accounting information, to manipulate the balance sheet, to manipulate the profit and loss account in front of others. Why? What's the need of manipulation? मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि जिसको जिस वे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हम उसी वे में उसको तैयार करके देते हैं। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपके ऊपर होता है। आप उस स्टॉक को 1 लाख रुपया दिखाओ तो प्रॉफिट 1 लाख के बराबर का आएगा। उसी स्टॉक को बता दिए मेरे पास स्टॉक 10 लाख रुपए का है, प्रॉफिट भी ज्यादा बच करके आएगा। शायद अभी इतना अच्छे से आप ना समझ पाओ, लेकिन ये बताओ, अगर आपने कहा कि मैंने 1,000 रुपए का सामान परचेज किया, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आपका। आपने कहा कि मैंने 1,000 रुपए का सामान परचेज किया और वो 1,000 रुपए का जो सामान आपने परचेज किया उसको 500 रुपए में बेच दिया, तो तुरंत दिमाग में आ गया कि सर 500 रुपए का लॉस हो गया। लेकिन कॉमर्स का स्टूडेंट रहेगा, वो तुरंत सोचेगा कि कहीं पे कोई सामान अभी बचा तो नहीं है, तुरंत मुझे क्या पूरा स्टॉक बेच दिया? तो आपने कहा नहीं, अभी तो 800 रुपए का स्टॉक बाकी है। इसका मतलब 800 रुपए का स्टॉक बाकी है, तो आपने 200 का स्टॉक 500 में बेचा, आपको प्रॉफिट हुआ 300। सोचने की जरूरत नहीं ज्यादा। लेकिन जो आपने कहा 800 का स्टॉक बचा है, अगर ये काफी लंबा स्केल हो बिजनेस का, तो आप कह देंगे 800 का नहीं बल्कि 8 लाख का स्टॉक बचा है। तो जितना ज्यादा आप स्टॉक बढ़ा देंगे, प्रॉफिट उतना ज्यादा आ जाएगा। प्रॉफिट उतना ज्यादा आ जाएगा। इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, देख करके खुश हो गया, फटाफट पैसा लगा दिया। तो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी शोड इन फ्रंट ऑफ अदर। व्हाट आर नेसेसरी, व्हाट आर रिलेवेंट फॉर द बिजनेस, व्हाट मे बी फेवरेबल, व्हाट मे नॉट,
that you have to think everything at the time of preparation of the balance sheet and accounting information. You can see profit and loss and the cash flow statement. Okay. Next, understandability. ये तो हो गया आपका understandability. Understandability का मतलब है कि all the parties, all the investor, all the creditor, all the employee, they don't have any better understanding about accounting information. आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में प्रॉफिट एंड लॉस को सीधे 20 करोड़ या 30 करोड़ रुपए दिखा दिया, तो वो प्रॉफिट कहां से आया? फॉर दैट यू हैव टू सेट अ स्पेसिफाइड नोट्स. आपको उसे एक साथ अटैच करना पड़ेगा कि एक स्पेसिफाइड नोट्स बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस आया कहां से. आपकी प्रॉपर्टी 1 लाख से 2 लाख हो गई, कहां से हुआ? ठीक है. अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ अदर इन अ वेरी इजी वे. बहुत इजी वे में जो उसको शो किया जाना चाहिए. ठीक है. तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब कि दैट बैलेंस शीट, दैट प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी अंडरस्टैंडेबल इन फ्रंट ऑफ अदर. बहुत ही इजी वे में उसको बनाना चाहिए. बहुत ही डिफिकल्टीज वर्ड बहुत ऐसे ना यूज करिए कि जो है बाकी लोग को समझ में ना आए. अगर आप ऐसा कोई जैसे मॉर्गेज ऑन लोन ऐसा कोई वर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेसिफाइड नोट्स भी जो है नीचे लगाइए कि जो बैलेंस शीट आपके सामने दिख रही है उसको ये बेचारा इतना ध्यान से देख रहा है और ध्यान से देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है कि पता नहीं क्या लिखा है. मैं पैसा इस कंपनी में लगाना चाहता हूं लेकिन उसकी बैलेंस शीटें नहीं मुझे समझ में आ रही है. तो दैट बैलेंस शीट, दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी इन अ सिंपल लैंग्वेज, a very simple language that all the party are able to understand what will be right inside the balance sheet, inside the profit and loss account. If there is any specific items are given where there is necessary, you have to tag specified notes to account लगाना पड़ेगा. आपको दिखाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट में कि जो अंदर 1 लाख रुपए का सामान मैं दिखा रहा हूं वो है क्या. दिखाओ नीचे कहां से आया. कैश में आपका 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए हो गया, रीजन बताना पड़ेगा आपको. तो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. इन द अंडरस्टैंडेबिलिटी क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट ऑल द आइटम्स व्हिच आर गोइंग टू रिकॉर्ड एंड ऑल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय यू दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल इन फ्रंट ऑफ अदर. कि द अदर पार्टी, द वेरियस पार्टी उसको क्या है देख करके ही समझ जाए. बात में समझ आई? समझने लायक हो. क्या हो? समझने लायक हो. देख करके ही समझ जाएं कि क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है. घुमा घुमा के दे दिया तो वो आपके कंपनी में इंटरेस्ट नहीं लेगा, चाहे वो क्रेडिटर हो या फिर बैंक वाला बैंक लोन देना चाहता हो या फिर कोई और हो या कोई पार्टी आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हो. अगर वो इजी वे में, इजी मैनर, इजी उसमें नहीं लिखा रहेगा तो कोई भी आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं होगा. अगर कोई ऐसा आपने बना रखा है तो उसके लिए अलग से नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा. नाउ ये भी आपको नाउ फोर्थ इज कंपेरेबिलिटी. व्हाट अबाउट कंपेरेबिलिटी? स्टूडेंट्स, कंपेरेबिलिटी का मतलब है कि द बैलेंस शीट, द प्रॉफिट एंड लॉस विच आर प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेसमैन दैट शुड बी अ फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर. देखो ये प्रीवियस ईयर, जैसे आपने ये बताया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैंने इसे बना दिया. सपोज दैट एग्जांपल ले रहा हूं, अभी तो आप ज्यादा जानते नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, तो आगे बताया जाएगा. जिस दिन बता दूंगा उस दिन भूलेगा नहीं आपको, तो डोंट वरी. सपोज दैट आपने लिखा कि मेरा प्रॉफिट जो है वो इस साल का आया 2 लाख रुपए. कितना है? 2 लाख रुपए. तो ये प्रॉफिट इस साल 2 लाख रुपए है. तो सपोज करो कि करंट ईयर आपका है 2021, तो 2020 में कितना था वो भी आपको दिखाना पड़ेगा. तो कंपेरेबिलिटी का मतलब है कि बैलेंस शीट एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मींस trading P&L and balance sheet and accounting information which are showed by the businessman in front of other, that should be previous year figure, that should be contain the figure of previous year. previous year के फिगर को भी उससे कंटेन करना पड़ेगा, उसके साथ लगा होना चाहिए. इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट क्या होगा? इसके बेनिफिट से जो इन्वेस्टर होगा, जो पार्टी होगी, वो तुरंत जान पाएंगी कि पिछले साल कैश इतना था, इस साल कैश इतना हो गया, या अपवर्ड हो गया या डाउनवर्ड हो गया, या स्टॉक इतना था अभी इतना हो गया, प्रॉफिट इतना था इतना हो गया. कंपनी अपवर्ड जा रही है, कंपनी डाउनवर्ड जा रही है, कंपनी इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से पूरी तरीके से हाई वे में जा रही है या डाउनवर्ड में जा रही है. तो कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है, हिंदी में जानते तुलनात्मक,
वो पूरी तरीके से कंपेयर करने लायक होना चाहिए। कंपेयर तभी हो पाएगा जब आपने उसमें दोनों ईयर की इंफॉर्मेशन दिया हो, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। किससे कंपेयर करेंगे? प्रीवियस ईयर के। प्रीवियस ईयर के कंपेयर में प्रीवियस ईयर के आइटम से, प्रीवियस ईयर के अमाउंट से कंपेयर करेंगे कि कंपनी अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड जा रही है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। फोर्थ इज फेथफुल प्रेजेंटेशन। फेथफुल प्रेजेंटेशन देखो, ले दे के बात वही आ गई लास्ट में कि फेथफुल प्रेजेंटेशन का मतलब द आइटम्स which are recorded inside the balance sheet, inside the books of account, that should be truth and fair। सारा झोल झाल करने के बाद लास्ट में क्या बोल दिया हमने कि फेथफुल प्रेजेंटेशन। फेथफुल प्रेजेंटेशन की पार्टीज, अदर पार्टीज आर होप दैट, वो आशा करती हैं कि द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच आर शोड बाय द कंपनी, विच आर प्रेजेंटेड बाय द कंपनी और बाय द ओनर आर ट्रू एंड फेयर। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी द ट्रांजेक्शन विच आर रिकॉर्डेड इनसाइड द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट शुड बी ट्रू एंड फेयर। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, द अकाउंटिंग बैलेंस शीट, द प्रॉफिट एंड लॉस कैपेसिटी विच आर शोड बाय यू, दैट शुड बी ट्रूथ एंड फेयर। ये मान लो कि जो दिखाया गया वो सही और सत्य ही रहा होगा, वही है ही, उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है, तो ये भी क्वालिटी होती है कि फेथफुल प्रेजेंटेशन उसका होना चाहिए, सत्य दिखाना चाहिए। सो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यू हैव टू फॉलो some qualitative characteristics of the accounting information, that format, that statement which are shown in front of other, that must be reliable, that must be relevant, that must be understandable by all the party, that should be comparable. You have to include previous year amount also, and faithful presentation, the amount which are shown by you, which are written by you, which are recorded by you, that should be true and fair. Okay students, so write down. ओके स्टूडेंट्स, तो टॉपिक आपका पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है, आपका लेसन भी आज जो है क्लोज हो चुका है, चैप्टर भी क्लोज हो चुका है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, मीनिंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। सो आई होप कि अब जो है आप पढ़ करके पूरा चैप्टर आपने रीड किया तो आपका फेस इस तरीके से होना चाहिए, है पूरी तरीके से स्माइलिंग फेस होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए पूरा नया था अकाउंट, और मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए कि जो है कि समझ में आ गया होगा आपको कि अकाउंटिंग क्या होती है, कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, so if you like this video, press the like button and comment in the comment section, because जो आप कमेंट करते हो, जब आप जो है लाइक करते हो तो उससे मोटिवेशन मिलता है कि स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, तो भरोसा हो जाता है ना कि मेरा बच्चा समझ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।